Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in the second chapter of this particular subject, that is instruction set and programming. And in our last lecture, we have ended the topic of programming. We have seen different types of programming with the help of assembly language program. So we have seen the program of arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division. Also, we have seen program related to logical operations and logic, all logic, XOR logic. And in the last lecture, we have completed the topic of programming of looping, where some looping is required, where loop is required in a program. So we have seen such program also. For example, the program of smallest number, largest number, and block transfer. So especially these programs are where looping is required, means you have to use counter and decrement the counter for successive operation. So till here we have completed in our last lecture. Now we are in the last topic of this second chapter. Today we are going to end our second chapter also. So the today's lecture topic is we have to first understand the function of software development tools. What are the tools which are required in software development? If you are developing a program, so what are the tools you required for developing your program? So we have to understand what are the software development tools. So today's learning objective is explain the function of software development tools with diagram. And in the end of the lecture, you must be able to give the answer such as right step for the software development life cycle. So how the cycle is going to be complete if you are writing some program. So what are the steps involved in writing a program? Which types of files are generated and how you are processing your program till end. So first we have to understand what are the steps involved in the software development life cycle. Second, you must be able to give the names of tools which are required in software development. What are the different types of involved, or what are the different types of tools involved in software development. So we are going to first understand what are the steps involved in software development, program development, and in the end you must be able to give the answer also, right function of software development tools. You must be able to provide the explanation and function of each and every tools of software development. So these all are the today's learning objective, and in the end you must be able to provide the answer also. So this is the concept map. Now this is the tools which are involved in software development, and in this lecture we are going to understand all these tools. So as you can see, these are the process, these are the flow. It is going on when we are developing a program. So these all are the steps involved in developing a program, and these all are actually known as software development tools. So in the very first block, you are able to see the name, that is editor program. Now what is this editor program? What do you mean by editor program? तो ये एडिटर प्रोग्राम वो होता है जहाँ पे आपने कील सॉफ्टवेयर यूज किया था, मालूम है? तो कील सॉफ्टवेयर में जो स्टार्टिंग की जो विंडो थी, व्हाइट विंडो, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम लिखने वाली विंडो को बोलते हैं एडिटर विंडो, वेर यू आर राइटिंग योर एक्चुअल प्रोग्राम. जो हम लोग अपने नेमोनिक्स में जो प्रोग्राम लिखे थे, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम लोग अपना प्रैक्टिकल में भी किए, थियरी में भी जो अंडरस्टैंड किए, तो वो जो प्रोग्राम हम जो व्हाइट विंडो में लिखते हैं ना, उस विंडो को बोलते हैं एडिटर विंडो बोलते हैं. मैं कील सॉफ्टवेयर में आपको वो व्हाइट विंडो दिखा चुका हूँ जहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में एडिशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ गलत रहा तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं. तो जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो उस विंडो को क्या बोलते हैं? एडिटर. सो वेर यू राइट योर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. समझे ना? लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मैंने आपको बता चुका था, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. क्यों लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं? बिकॉज वो हमारे लिए इजीनेस होता है ना, फ्रंट लास्ट एंड यूजर एंड की तरफ से. हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? निमोनिक्स के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ रहता है? मूव लिखा हुआ रहता है, एडिशन का ऐड लिखा हुआ रहता है. तो ये सब लिखने से मतलब हम लोग को क्लियर होता है कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रहा है. हालांकि कंप्यूटर जो है, अपना माइक्रो प्रोसेसर जो है, उसको ये मूव, ये एडिशन, इससे कुछ लेना देना नहीं है. उसको इससे कुछ मतलब नहीं समझता है. उसको सिर्फ और सिर्फ क्या भाषा समझती है? जीरोस और वन की भाषा समझती है. तो वो जो जीरो और वन की भाषा है उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. तो इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर वो कौन से वर्क पे काम करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करता है. और जो हम लोग जो लिखते हैं प्रोग्राम,
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो हमारे लिए आसानी के लिए होता है ताकि हमको मालूम पड़े कि ये इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये एडिटर क्या है? एडिटर वो है जहां पे आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखते हो, और आप जो फाइल को जो सेव करते हो वो कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हो आप सबको पता है। मैं जितना भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा था आपको सब में बता चुका हूं कि मैं हमेशा वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखता था कौन से एक्सटेंशन से, .asm से, क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्राम है तो इसके लिए उसको कौन से एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, .asm फाइल से सेव किया जाता है। जैसे प्रैक्टिकल 3 का था तो मैंने pr.3asm लिखा था, प्रैक्टिकल 4 का था तो मैंने pr4.asm से सेव किया था। तो जो भी आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होती है उसको आप सेव करते हो .asm एक्सटेंशन से। तो इज दैट क्लियर? व्हाट इज एडिटर? एडिटर क्या है वो क्लियर हो गया। तो एडिटर वो होता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम को असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जहां पे आप लिखते हो वहां पे आप सेव करते हो कौन से एक्सटेंशन से, .asm से। फिर इसके बाद देखो असेंबलर आ गया। ये असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय असेंबलर? तो जो आपने अपनी प्रोग्राम जो लिखे ना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, उस असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो नेमोनिक्स वाला फॉर्म वाला भाषा नहीं समझता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, 0 और 1 की। तो वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस आपने लिखे, इंस्ट्रक्शन लिखे, उस इंस्ट्रक्शन का कोड जनरेट होता है, कोड जनरेट करना पड़ता है, और वो कोड अंडरस्टैंड करता है अपना माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर है वो वही लैंग्वेज को समझता है, 0s और 1 की लैंग्वेज, 0s एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो इसके लिए असेंबलर क्या करता है? असेंबलर आपका क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी प्रोग्राम होती है? 0s और 1 की होती है, जो कोड के फॉर्म में होती है, जो 0s और 1 के कोड के फॉर्म में होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है, तो उसको कन्वर्ट करेगा। और कौन कौन सी फाइल जनरेट करेगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो असेंबलर है आपकी कौन सी टाइप की फाइल जनरेट करेगा? लिस्ट टाइप की फाइल जनरेट करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेगा। तो दो तरीके की फाइल जनरेट करता है असेंबलर। जब आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन लेवल प्रोग्राम में, तो दो तरीके की फाइल जनरेट होती है, एक लिस्ट फाइल होती है, एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है। लिस्ट फाइल वो होती है जिसमें देखो सारा कोड लिखा रहता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में प्रोग्राम में जो बता रहा था ना आपको कि देखो ये मेमोरी का एड्रेस है, ये ऑपकोड है, ये इस तरीके का है। तो वो लिस्ट फाइल ने सारी चीज लिखा हुआ दिखाई देता है, कौन से मेमोरी पे कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखा है वो भी दिखाई देगा, और उस इंस्ट्रक्शन का क्या कोड है, जो कोड जनरेट होता है वो सारा एक साथ पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपको नजर आएगा, उसको लिस्ट फाइल बोलते हैं। और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट फाइल जो मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होती है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है, उसको .obj फाइल बोलते हैं। तो ये दो तरीके की फाइल आपका असेंबलर जनरेट करता है। फिर वो किसको दिया जाता है? लिंकर को दिया जाता है। अब लिंकर का क्या काम होता है? लिंकर लिंक करता है बहुत सारे प्रोग्राम को एक फाइल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारी सब रूटीन को भी लिखे हो, अलग अलग काम की सब रूटीन को लिखे हो, तो सब रूटीन वाला प्रोग्राम का अलग कोड जनरेट होता है, उसका अलग कोड जनरेट होता है। तो सारे का कलेक्शन करके लिंक करके एक ही कोड जनरेट करने का काम किसका है? लिंकर का। तो जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल, जो फाइनल एग्जीक्यूट करने वाली जो फाइल है वो कौन जनरेट करता है? आपका लिंकर जनरेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग मॉड्यूल के प्रोग्राम लिखे हुए हो, अलग अलग मॉड्यूल के प्रोग्राम लिखे हुए, तो उन सारे मॉड्यूल को इकट्ठा करके एक फाइनल जो एग्जीक्यूट होने वाली फाइल होती है वो जनरेट करने का काम किसका है? लिंकर का है। तो लिंकर क्या करता है? लिंकर इज यूज्ड फॉर लिंकिंग द डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम इनटू अ वन फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जो फाइनल एग्जीक्यूट होने वाला फाइनल जो काम है वो कौन करता है? लिंकर करता है। और इसकी जो एक्सटेंशन वाली फाइल जो जनरेट होती है वो कौन सी फाइल जनरेट होती है? .abs। तो .abs कौन सी फाइल होती है? एब्सोल्यूट। कौन सी फाइल होती है? एब्सोल्यूट फाइल जनरेट करता है। तो एब्सोल्यूट फाइल ये आपकी होती है। लास्ट में आपको OH प्रोग्राम नजर आ रहा है, ये OH प्रोग्राम मतलब हेक्साडेसिमल वाला फाइल, जो हेक्स कोड वाला फाइल। तो ये फाइनल आपका हेक्स फाइल जनरेट होता है, जो आपको नजर आता है कि हाँ ये कोड ये जनरेट हो गया, ये इसका पर्टिकुलर ये कोड था और ये कोड जनरेट हो गया है। तो ये फाइनली आपको OH प्रोग्राम मतलब क्या? हेक्साडेसिमल प्रोग्राम। तो हेक्साडेसिमल प्रोग्राम में आपका जो भी कोड था वो हेक्साडेसिमल में हेक्स कोड में जनरेट होगा, और उसका हेक्स फाइल नजर आएगा आपको .hex करके। तो हेक्स फाइल जनरेट होता है फाइनली आपका। तो ये कॉन्सेप्ट मैप था, ये कॉन्सेप्ट मैप में आपको समझा रहा था।
यही सारा चीज आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो है वो ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है, जो जो टूल्स इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। तो कौन कौन से टूल्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला एडिटर होता है, असेंबलर होता है, क्रॉस असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, क्रॉस कंपाइलर, लिंकर, डीबगर, सिमुलेटर। तो दिस ऑल आर द टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ये सारे टूल्स लगते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और ये सारे टूल्स को मिला के कंप्लीट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। ये एक साथ जुड़े हुए तब एक साथ लिंक होते हैं। इसका मैं आपको अपनी नोट्स में भी शेयर करूंगा, दिखाऊंगा ये साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे जो इनका एमएसबीटी के प्रेजेंटेशन में जो नोट्स उन लोगों ने शेयर किया है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। तो एक एक करके उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडिटर क्या काम करता है, फिर इसके बाद क्या होता है। तो एडिटर क्या करता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जहाँ पे आप अपनी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं? एडिटर। तो आप इसको कहाँ से इनपुट देते हो? इनपुट थ्रू कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग टाइप करते हैं जो भी सेंटेंस रहता है प्रोग्राम का, और फिर ये एडिटर में आप टाइप करते हो और उसको सेव कौन से एक्सटेंशन से करते हो? .asm एक्सटेंशन से सेव करते हो। तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसका .asm एक्सटेंशन से सेव करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेम्परेचर वाला एक्सपेरिमेंट था तो टेम्परेचर वाले एक्सपेरिमेंट को आप सेव करोगे temp.asm से। तो बेसिकली कौन कौन से एग्जांपल है? द डॉस बेस्ड एडिटर सच एज एडिट, वर्डस्टार, नॉर्टन एडिटर। जहां जहां पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो, नोटपैड के जैसे, जैसे आपका नोटपैड होता है ना, जहाँ पे आप अपना टाइप करते हो, तो यही चीज है। ये कील में हम लोग ने जो विंडो देखे, वो उस विंडो में जहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं उसको एडिटर विंडो बोलते हैं। तो डॉस बेस्ड एडिटर सच एज एडिट, वर्डस्टार, नॉर्टन एडिटर, ये सारे एडिटर का नाम दिया हुआ है, इधर पे लिखा हुआ। दूसरा है आपका असेंबलर। तो असेंबलर के बारे में मैंने समझाया। असेंबलर क्या करता है? प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू बाइनरी कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबलर क्या करता है? जो आपने प्रोग्राम लिखे असेंबली लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी कोड में। 0 और 1 की भाषा, 0 की 1 और भाषा समझता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। उसको ये न्यूमेरिक नहीं समझता है, मूव क्या है, ऐड क्या है, उसको उससे लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ एक ही भाषा समझती है, 0 और 1 की। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, बाइनरी कोड समझता है। तो आपका असेंबलर क्या करेगा? जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी कोड। और कौन कौन सी फाइल जनरेट करेगा? .obj फाइल एंड .list फाइल। LST यानी लिस्ट फाइल होती है, OBJ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो दो तरीके की फाइल जनरेट करता है। लिस्ट फाइल में सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोग्राम का मेमोरी एड्रेस क्या है, ये इंस्ट्रक्शन जो लिखे थे उसका आउटपुट क्या है, वो सारी चीज आपको पूरा रिप्रेजेंट करके जो दिखाता है वो लिस्ट फाइल होती है। और ऑब्जेक्ट फाइल जो आगे आप प्रोवाइड करते हो किसको? जो आपका लिंकर वगैरह है, जहाँ पे लिंक करना है प्रोग्राम को, एक साथ जोड़वाना है, तो ये ऑब्जेक्ट फाइल आगे प्रोसेस होता है जो इसके पर्टिकुलर बाइनरी कोड में जनरेट किया हुआ होता है। तो बाइनरी कोड वाला जो फाइल होता है उसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। और लिस्ट फाइल जो पूरा टेबुलर फॉर्म में पूरा एक रिकॉर्ड बताता है कि ये क्या कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे ये लिखा हुआ है, उसका आउटपुट क्या है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला लिस्ट फाइल होता है। और बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके जो फाइल जनरेट होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे ASM51, कील्स A51। हम लोग जो कील यूज करते हैं वो असेंबलर है, वो इंटरनली कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को किसमें? आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज है, एग्जाम्पल है असेंबलर का। फिर इसके बाद एक है क्रॉस असेंबलर। अब क्रॉस असेंबलर क्या होता है, ये थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लो। क्रॉस असेंबलर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम लिखे, इंस्ट्रक्शन जो यूज किया वो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया? 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन थे उस इंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया? प्रोग्राम लिख दिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज फॉर मशीन। कौन से मशीन के लिए? 8085 के लिए, 8085 के लिए। लेकिन क्रॉस असेंबलर कि इस्तेमाल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको कभी जरूरत पड़ जाती है, आपके पास कोई दूसरा मशीन अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रो प्रोसेसर 8085 नहीं था, आपके पास 8086 था। तो 8086 था तो आपने 8086 के हिसाब से भी क्या कर दिए? क्रॉस असेंबलर क्या करता है? एडजस्ट कर देता है। वो आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट करके फिर वो उसके लिए भी कोड जनरेट कर देगा। मशीन कोड फॉर मशीन 8085 कर देगा। आपके पास मशीन अवेलेबल फॉर एग्जांपल 8085 के बदले में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल था? 8086 अवेलेबल था। तो वो 8086 में लिखा हुआ प्रोग्राम को भी एडजस्ट कर देगा किसमें? 8085 में। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस असेंबलर।
तो क्रॉस असेंबलर क्या होता है, यानी जो चीज आप जिसके लिए लिखे थे वो चीज अवेलेबल नहीं थी, दूसरी चीज अवेलेबल थी, लेकिन उस दूसरी वाली चीज को भी उसने क्या कर दिया, कंपेटेबल कर दिया उसके लिए 8085 के लिए। तो मेन असेंबलर क्या करता है, असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, कोड में कन्वर्ट करता है। मान के चलो आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखे 8085 का, और आपके पास माइक्रो प्रोसेसर जो अवेलेबल है वो कौन सा अवेलेबल है, 8086 का। तो ये जो आपने प्रोग्राम लिखे ना 8085, तो आप 8085 का प्रोग्राम ये आप 8086 माइक्रो प्रोसेसर को भी यूज करके उसका कन्वर्जन 8085 में दिखा सकते हो, इसका कन्वर्जन आपको दिखा सकता है 8085 में। तो ये कौन सी चीज से हेल्प होता है, ये कौन सी चीज से हो सकता है, क्रॉस असेंबलर। क्रॉस असेंबलर मतलब क्या हो गया, जो चीज जिसके लिए थी उसके दूसरी चीज से भी उसने वो कंपेटिबिलिटी कर दिया। आपने काम कर रहे थे 8085 के लिए, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया, कंपेटिबल कर लिया अपने आपको 8086 के लिए भी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस असेंबलर बोलते हैं। नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 1। तो पहले देख लेते हैं इसका एमसीक्यू सेट 1 क्या है। तो ऐसे सेट 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग प्रोग्राम्स हेल्प टू कंस्ट्रक्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो कौन सी चीज हेल्प करती है आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में, टेल मी। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में कौन सी चीज हेल्प होती है, असेंबलर होता है, लिंकर होता है, कंपाइलर होता है, या एडिटर होता है, एडिटर। एडिटर, वेरी गुड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर with one type of processor but generate machine code for a different type of processor is। ये अभी मैं आपको समझा रहा था। तो जो प्रोग्राम आप रन करते हो कंप्यूटर में एक टाइप के प्रोसेसर के लिए, बट उस मशीन कोड जो जनरेट होता है वो डिफरेंट टाइप का प्रोसेसर जनरेट होता है, तो वो कौन सी चीज है, कंपाइलर है, क्रॉस असेंबलर है, असेंबलर है, लिंकर है, क्या है, क्रॉस असेंबलर। क्या है वो, क्रॉस असेंबलर। आपने प्रोग्राम को रन किए वन टाइप ऑफ प्रोसेसर के लिए, लेकिन जो कोड जनरेट हुआ, जो मशीन कोड जनरेट हुआ, वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर का जनरेट हुआ, तो वो चीज करने वाला कौन सा है, क्रॉस असेंबलर है ना। अभी तो वही तो समझा रहा था। तो क्रॉस असेंबलर एक के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइप के लिए भी आप जनरेट कर पा रहे हो, तो वो क्या है, क्रॉस असेंबलर। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ असेंबलर। असेंबलर का आउटपुट क्या रहेगा, डॉट एएसएम फाइल रहेगा, डॉट ओबीजे फाइल रहेगा, डॉट हेक्स फाइल रहेगा, या डॉट एसआरसी फाइल रहेगा, कौन सा रहेगा। असेंबलर का आउटपुट कौन से एक्सटेंशन से आता है, असेंबलर का जो आउटपुट है वो कौन से नाम से आता है, जल्दी बताओ यार। असेंबलर का आउटपुट पूछ रहा है, असेंबलर का आउटपुट, वेरी गुड, डॉट ओबीजे। श्रद्धा इज गिविंग करेक्ट आंसर, डॉट ओबीजे फाइल। असेंबलर का जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है और लिस्ट फाइल होता है। मैं अभी आपको बता रहा था, गलत मत करना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। सो करेक्ट आंसर आपका क्या क्या है, देखो पहले वाले का आंसर डी एडिटर बराबर है, सेकंड वाले का आंसर भी क्रॉस असेंबलर करेक्ट है, और थर्ड वाले का आंसर डॉट ओबीजे फाइल। आउटपुट पूछा था, इनपुट नहीं पूछा था। असेंबलर का इनपुट पूछता तो डॉट एएसएम फाइल होता, लेकिन आउटपुट पूछा है तो ओबीजे फाइल होता है और लिस्ट फाइल होता है। तो ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे क्या है, एमसीक्यू सेट 1 हो गया, फिर कंपाइलर है। अब देखो ये कंपाइलर क्या चीज होती है, अभी तक आपने पढ़े किसके बारे में, असेंबलर के बारे में। अब आ गए आपके सामने क्या, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी और मशीन कोड में। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम होता है, लो लेवल का तो आपको मालूम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल बोलते हैं। हाई लेवल कौन सा होएगा, हाई लेवल लैंग्वेज आपका जो सी प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो आप सी प्रोग्रामिंग करके भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप असेंबली लैंग्वेज में भी कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और सी प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सी प्रोग्रामिंग वाली प्रोग्राम है उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कौन सा है आपका, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर लगता है असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में, और कंपाइलर किसके लिए लगता है, कंपाइलर आपका लगता है सी प्रोग्रामिंग वाली फाइल को, सी लेवल लैंग्वेज वाली प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, बाइनरी कोड में। तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सी का नाम नहीं दिया इसने, इसने क्या लिखा, इसने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम दिया।
तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कौन सा आपका? सी प्रोग्रामिंग, जो आप .c एक्सटेंशन से सेव करते हो। तो सी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, मशीन कोड में कौन सी चीज? कंपाइलर। तो सोर्स कोड होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, कन्वर्ट करेगा उसको ऑब्जेक्ट कोड मशीन लेवल लैंग्वेज पे। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? कील है, वही कील सॉफ्टवेयर में आप सी प्रोग्रामिंग का भी लिख सकते हो। राइड है एंड IAR वर्कबेंच एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स है आपके। इसी के साथ में देखो जुड़ा हुआ है क्रॉस कंपाइलर। तो क्रॉस कंपाइलर क्या है? अब जैसे आपने क्रॉस असेंबलर देखे, वैसे क्रॉस कंपाइलर भी है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कोड अदर देन वन ऑन विच द कंपाइलर इज रन। समझे ना? ये क्रॉस कंपाइलर का काम क्या होता है? ये क्या क्रिएट करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करता है अदर देन वन ऑन विच द कंपाइलर इज रन। जिसके लिए आप कंपाइलर को रन कर रहे हो, उसके अलावा दूसरे के लिए कोड जनरेट करने के लिए, दूसरी चीज के लिए कोड जनरेट करने के लिए। तो ये क्रॉस कंपाइलर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, आपने प्रोग्राम लिखे 8085, लेकिन आप यूज कर रहे हो माइक्रो प्रोसेसर 8086, तो उसके लिए भी 8086 के लिए भी यूज करके आप 8085 का क्या कर सकते हो? अपना मशीन कोड जनरेट कर सकते हो। तो ये चीज वही है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कोड, ये भी एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करेगा अदर देन वन ऑन विच द कंपाइलर इज रन। दे आर यूज टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल फॉर एम्बेडेड सिस्टम ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो एम्बेडेड सिस्टम वगैरह के लिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए ये सब क्रॉस कंपाइलर वगैरह यूज होता है। लिंकर, लिंकर का काम बता चुका था। लिंकर क्या करता है? लिंक करता है अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में, एक सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में इकट्ठा करके। अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में बहुत सारी सब रूटीन थी, अलग अलग सब रूटीन थी, अलग अलग काम वाले प्रोग्राम थे, तो उन सारे प्रोग्राम को इकट्ठा करके जोड़ के एक सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है लिंकर। तो इनपुट में क्या दिया हुआ है आपका? OBJ फाइल, और आउटपुट में लिंकर का क्या दिएगा आपको? .hex फाइल। तो जो फाइनल फाइल जनरेट होती है, जो फाइनल फाइल आउटपुट में आपको दिखती है रन होके, वो कौन सी फाइल होती है? हेक्स फाइल होती है। हेक्स कोड, हेक्साडेसिमल कोड वाली फाइल, हेक्स फाइल बोलते हैं उसको। तो .hex ये हम लोग देखेंगे, अपन प्रोग्राम करेंगे ना आगे चल के, तो मैं आपको दिखाऊंगा हेक्स फाइल इज जनरेटेड, वो सब दिखाता है आपको। जब अपन ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करते हैं तो नीचे यही सब लिख के आता है, हेक्स फाइल सक्सेसफुली जनरेटेड। तो वो सब दिख के आता है, स्टेप बाय स्टेप है ये सब। तो इनपुट में इसको लिंकर को क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट फाइल मिलता है। कहाँ से मिलता है ये ऑब्जेक्ट फाइल? अभी हम लोग ने देखे थे, असेंबलर यूज कर लो या कंपाइलर यूज कर लो, तो उससे आपको ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा, कोड वाला फाइल मिलेगा। उस कोड वाले फाइल को इकट्ठा करके फाइनली क्या जनरेट करेगा? हेक्स फाइल जनरेट करेगा। तो लिंकर क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के मॉड्यूल को जोड़ के लिंक करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। उस फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होता है .hex फाइल। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप में आपको दिया हुआ डीबगर। डीबगर का मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में कहीं कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो इसके लिए हम लोग तो वो सब करते हैं ना, ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करते हैं। अगर कहीं कोई सेंटेंस में एरर हो, मिस्टेक हो, तो वो आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस में ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करो। तो डीबगर क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स और बग्स इन अ प्रोग्राम। तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ बग्स है या कुछ एरर है, तो उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। फिर वो चीज़ आप क्या करोगे? वापस से करेक्ट करोगे, तो दोबारा सेव करके वो प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं मालूम? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीबग करके अगर कुछ एरर होगा तो वापस से आपको पुराने स्टेप में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? वापस से आपको असेंबलर में जाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो ये जो है ना प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो डीबग करके अगर कुछ एरर होगा तो आप दोबारा वो प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, रिपीट करोगे। और अगर एरर नहीं है तो आगे बढ़ जाओगे। उससे आगे बढ़ के क्या करोगे? सिमुलेटर। सिमुलेटर क्या करता है? सिमुलेट्स अ हार्डवेयर यूनिट। ये क्या करता है मालूम है ना? सॉफ्टवेयर दैट सिमुलेट्स अ हार्डवेयर यूनिट्स। हम लोग सिमुलेशन क्यों यूज करते हैं? अगर कोई चीज आपके पास हार्डवेयर में नहीं करना है तो उसके पहले आप क्या करते हो? वही चीज को सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करके पहले चेक कर लेते हो कि ये किस तरीके से वर्क करने वाली है। जैसे आपका प्रोटियस, तो प्रोटियस हम लोग क्यों यूज करते? ताकि हम लोग उस हार्डवेयर में जाने से पहले उसको सॉफ्टवेयर में वो चीज को रन करके देख ले, क्या वो आइदर वो प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली रन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो विद डायरेक्टली आप हार्डवेयर में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले उसको सिमुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि आइदर ये मेरा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर सिमुलेट हो रहा है प्रॉपरली, दिख के आ रहा है कि आपका रन हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो हार्डवेयर में भी क्या होना है? रन होना चाहिए। तो सिमुलेटर्स क्या होता है? सिमुलेट्स द
हार्डवेयर यूनिट, यानी आप क्या करते हो, हार्डवेयर यूनिट का आप क्या बनाते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसमें अपना एक्चुअल वर्किंग देखते हो, चेक करते हो कि वो पर्टिकुलर चीज प्रॉपरली वर्क होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो वर्क होगी तो उसका फिर हार्डवेयर यूनिट भी प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। ये सिमुलेटर्स का यूज होता है। नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 2। एमसीक्यू सेट 2 को अटेम्प्ट करना है। तो एमसीक्यू सेट 2 ये है आपके पास, फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो कौन सी चीज है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जल्दी से बताओ। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाली चीज कौन सी है, असेंबलर, लिंकर, कंपाइलर, एडिटर, टेल मी कंपाइलर। कंपाइलर, वेरी गुड। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कौन सा है, सी प्रोग्राम। जो सी प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं कंपाइलर। और लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसके लिए असेंबलर लगता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग पीस ऑफ कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल फाइल। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सारे प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है पीस ऑफ कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल फाइल। तो एक सिंगल फाइल में जनरेट करने वाली चीज कौन सी है, सारी चीजें, हाँ लिंकिंग, वेरी गुड। तो इसका जो आउटपुट है वो कौन सा आता है, डॉट हेक्स फाइल में आता है। लिंकर क्या करता है, सारे अलग अलग मॉड्यूल को इकट्ठा करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में जनरेट करता है, सिंगल फाइल में जनरेट करता है। और वो सिंगल फाइल जो होती है वो कौन से एक्सटेंशन से होती है, डॉट हेक्स, हेक्स फाइल से होती है। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ लिंकर, लो मैंने बोल दिया वही आउटपुट इधर पे भी पूछ रहा है, क्या रहेगा इसका बताओ जल्दी। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ लिंकर, हेक्स फाइल, बराबर, ऑप्शन सी। तो ये सारी चीज देखो, ये ऐसा था, इसके लिए मैंने ये इसलिए वही प्रोग्राम यूज करता हूँ, वही प्रेजेंटेशन यूज करता हूँ मैं। तो पहले का आंसर सी कंपाइलर, सेकंड का आंसर बी लिंकिंग, थर्ड वाले का आंसर सी डॉट हेक्स फाइल। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। तो दैट्स द समरी ऑफ दिस लेक्चर। एडिटर, असेंबलर, क्रॉस असेंबलर, एडिटर, असेंबलर, क्रॉस असेंबलर ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए यूज होते हैं। और बाकी ये कंपाइलर और क्रॉस कंपाइलर किसके लिए यूज होता है, सी लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। तो असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर जो है वो सी लेवल वाली प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में आपने लिंकर से सारे प्रोग्राम को जोड़ दिए, इकट्ठा कर दिए। फिर इसको आप डीबग करोगे, चेक करोगे कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे प्रोग्राम में। अगर एरर फ्री है तो आगे चल के सिमुलेट करो, रन करो। अगर एरर है दोबारा जाओ, दोबारा जाके उसको सही करो, दुरुस्त करो। तो ये था आपका किसमें पूरा ये पार्ट था आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में। मैं फटाक से आगे आऊंगा, अब इधर पे आऊंगा क्योंकि मुझे ये दोनों चीज खत्म करना है एक साथ। तो इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के बाद में एक साथ जुड़ी हुई है डायरेक्टिव्स, असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो जो हम लोग अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में जो सेंटेंस लिखते हैं ना, जैसे कि ORG और लास्ट में क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, तो ये जो है ये सबको बोला जाता है असेंबलर डायरेक्टिव्स। यानी क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्शन देते हैं। तो व्हाट आर असेंबलर डायरेक्टिव्स, तो अभी ये लेक्चर में हम लोग को कंटिन्यूएशन पार्ट में देखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स, क्या यूज है उसका अंडरस्टैंड करना है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो देखो ये सारे असेंबलर डायरेक्टिव्स है, कौन कौन से असेंबलर डायरेक्टिव्स है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज होते हैं। ORG, DB, EQU, equate, and code, data. So these all are the assembler directives which are used in our assembly level language program. और इनका काम क्या होता है, असेंबलर डायरेक्टिव्स का काम क्या होता है, दे आर गिविंग द डायरेक्शन टू आवर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्शन देने वाले को क्या कहते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल ORG, तो ORG क्या बोलता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, क्या बोलता है कि वो प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया जाए, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम वेयर टू वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रोग्राम, राइटिंग अवर प्रोग्राम। तो जैसे ये सब डायरेक्टिव्स है, तो जो डायरेक्टिव्स किसको बोलते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्शन देते हैं व्हाट टू डू, तो उसको डायरेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की डायरेक्टिव्स है जो हम लोग को जानना है, अंडरस्टैंड करना है। जिसमें से सबसे पहले आपकी जो डायरेक्टिव है वो कौन सी है, ORG। ORG स्टैंड फॉर ओरिजिन, या ओरिजिन भी बोल सकते हो, या ओरिजिनेट, यानी जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट। तो इसका सिंटैक्स कैसा लिखा होता है, हम लोग ने अपने प्रोग्राम में देखे थे। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, ORG, फिर एक स्पेस देना पड़ता है और बाजू में क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस। जैसे हम लोग ने प्रोग्राम में लिखे थे ORG 0000H, तो ये आपने सिंटैक्स लिखते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो ये इस तरीके से लिखा होता है।
तो ये जो एड्रेस है चाहे तो आप हेक्साडेसिमल में दे दो, चाहे तो आप डेसिमल में भी दे सकते हो। अगर हेक्साडेसिमल में देना है तो आपको लास्ट में एच लिखना पड़ेगा, और अगर आपको विदाउट हेक्साडेसिमल या नॉर्मल डेसिमल में देना है तो कुछ भी मत लिखो। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो क्या बोलेगा, इट इज अंडरस्टैंडिंग डेसिमल, डेसिमल में अंडरस्टैंड करेगा। ये जो 0250 है ये डेसिमल वैल्यू को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सब ORG के एग्जांपल है। ये ORG जैसे 0100H मतलब क्या हुआ, आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से मेमोरी लोकेशन से, 0100 हेक्स मेमोरी लोकेशन से। इसका मतलब क्या हुआ, ORG 0250, इसका मतलब ये हुआ आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है कौन सी मेमोरी लोकेशन, 0250 डेसिमल वैल्यू। तो 0250 डेसिमल वैल्यू यानी उसको कन्वर्ट करेगा इंटरनली हेक्स में, और उस हेक्स का मेमोरी लोकेशन जो होगा वहां से स्टार्ट होगा आपका प्रोग्राम। तो अगर आप एच नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या समझेगा, वो डेसिमल वैल्यू समझेगा। विदाउट एच इट इज अंडरस्टैंडिंग विच वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। और अगर आपको हेक्साडेसिमल बताना है तो आपको एच लिखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ORG असेंबलर डायरेक्टिव क्लियर है। ORG मतलब क्या, ओरिजिनेटिंग द प्रोग्राम, फ्रॉम वेयर वी हैव टू ओरिजिनेट अवर प्रोग्राम। दूसरा है आपके पास डीबी। डीबी स्टैंड फॉर डिफाइंड बाइट। अब ये किस लिए यूज होता है, आपके पास अलग अलग तरीके की नंबर सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम भी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, आस्की भी है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ये कौन सा वाला नंबर सिस्टम में है, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्टिव यूज होती है, डिफाइन बाइट डायरेक्टिव यूज होती है। डिफाइन बाइट डायरेक्टिव का इस्तेमाल क्या है, डिफाइन बाइट डायरेक्टिव का इस्तेमाल ये है कि वो बताता है कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन से नंबर सिस्टम का लिखा हुआ है, आइदर वो डेसिमल का है, बाइनरी का है, हेक्साडेसिमल का है, या आस्की कोड का है, किसका है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिव्स यू आर एबल टू डिफाइनिंग अ बाइट, यानी जो आप बाइट लिखे हो उस बाइट को डिफाइन करता है। इट इज डिफाइनिंग इन विच नंबर सिस्टम, वो कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इसका सिंटेक्स देखो इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी आप प्रोग्राम में यूज करोगे तो सबसे पहले लेबल लिखा होगा, यानी आप लेबल डिफाइन करते हो कि ये डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल डेटा 1 है, डेटा 2 है, तो डेटा 1 मेरा बाइनरी में है या डेटा 2 मेरा हेक्साडेसिमल में है। तो पहले लेबल होता है, फिर कोलन, फिर एक गैप, फिर आप डीबी लिखते हो, डिफाइन बाइट वाली डायरेक्टिव, फिर एक स्पेस, और फिर वो बाइट आप डिफाइन करते हो, वो बाइट लिखते हो कि वो बाइट क्या है, उसको जो आप डिफाइन करना चाहते हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल ORG 500H लिखे, यानी आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हो 500 मेमोरी लोकेशन से, और उस प्रोग्राम में यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डेटा 1 कोलन स्पेस DB28। तो ये मतलब क्या हुआ, आप 28 के आगे कुछ लिखे क्या, आपने कुछ भी नहीं लिखे। तो कुछ भी नहीं लिखे तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या समझता है, कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आप ये बाइट जो 28 बाइट है इसको आप किस में डिफाइन कर रहे हो, कौन से नंबर सिस्टम में डिफाइन कर रहे हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में। So 28 is in which number system? Decimal number system, because आपने आगे कुछ लिखे नहीं हो। तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है ना, ब्लैंक रहता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या समझता है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझता है। अब इसी तरीके से दूसरा देखो डेटा 2, तो डेटा 2 कोलन डिफाइन बाइट, फिर यहाँ पे आपने बाइनरी के कुछ 8 बिट्स लिखे हो, तो 8 बिट मतलब 1 बाइट होता है। तो ये 1 बाइट का मतलब 8 बिट लिखे, और बाजू में क्या लिखे, लास्ट में क्या लिखे आपने, बी लिखे। तो ये बी लिखने से क्या होगा, मतलब आप ये बाइट को डिफाइन कर रहे हो कौन से नंबर सिस्टम में, बाइनरी में। तो ये जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है ना, दिस इज 1 बाइट, तो दिस 1 बाइट इज रिटन इन विच नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये डायरेक्टिव का यूज है ये फॉर डिफाइनिंग अ बाइट। तो डीबी स्टैंड फॉर डिफाइनिंग अ बाइट, यानी आप वो बाइट को डिफाइन कर रहे हो वो कौन से नंबर सिस्टम में है। तो बाइनरी में है तो बाइनरी के लिए बी यूज करोगे, हेक्साडेसिमल में है तो लास्ट में आप क्या यूज करोगे, एच यूज करोगे। और अगर आस्की कोड में लिखना होता है तो आस्की कोड के लिए, यानी फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम में आपको सेंटेंस वगैरह इस्तेमाल करना होता है तो उसको लिखने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो भी लिखोगे तो वो आस्की कैरेक्टर्स होगा, वो आस्की कैरेक्टर अंडरस्टैंड करेगा। ये सब प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल अपने को कभी एलसीडी पे डिस्प्ले कराना होता है ना, वेलकम टू अब्दुल रज़ाक कालसीकर पॉलिटेक्निक, आपको ऐसा डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए तो आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइनिंग अ बाइट। तो यू आर डिफाइनिंग अ बाइट इन विच नंबर सिस्टम, आस्की कैरेक्टर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा हुआ सेंटेंस होगा तो इट इज अंडरस्टैंडिंग आस्की कैरेक्टर, तो आस्की कैरेक्टर अंडरस्टैंड करेगा। और आस्की नंबर के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होगा तो आस्की नंबर होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, डिफाइन बाइट फॉर डिफाइनिंग अ बाइट इन विच नंबर सिस्टम।
फिर इसी के साथ में है नेक्स्ट जो डायरेक्टिव्स है वो इक्वेट डायरेक्टिव है, EQU करके यूज होता है। इसका सेंटेंस भी वैसे ही लिखा होता है, सिंटेक्स लेबल स्पेस EQU स्पेस कांस्टेंट। अब इसका फायदा क्या होता है ये अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में ना कोई चीज बहुत जगह पे मल्टीपल जगह पे यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कोई वैल्यू है, वो वैल्यू आपके हर जगह पे यूज होती है। अब वो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का ही देख लो, अगर आपने टेम्परेचर का कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू 39 लिख के रखा है, तो प्रोग्रामिंग में बार बार हर जगह पे वो 39 लिखा हुआ रहेगा। तो अगर वो चेंज हो जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप 39 से चेंज कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करना है 39 के बदले में 42, तो अगर 39 के बदले में 42 चेंज करना है, तो इसका मतलब फिर आपको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। वो जहां जहां पे आपने प्रोग्राम में 39 लिखी हो उसको चेंज करना पड़ेगा हर जगह पे 42। तो ये हर जगह पे चेंज करने से अच्छा आप क्या यूज कर लो, इक्वेट डायरेक्टिव यूज कर लो। तो इक्वेट डायरेक्टिव से क्या कर दोगे, आप वो पर्टिकुलर वैल्यू को कुछ नाम से रिप्लेस कर दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेम्प, टेम्प स्टैंड फॉर टेम्परेचर कोलन इक्वेट 39, यानी अब ये 39 वैल्यू किसके साथ में जुड़ गई है, कौन से नाम के साथ में जुड़ गई है, टेम्प के साथ में जुड़ गई है। अब आपको अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल 39 के बदले में 42, तो आप जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में चेंज कर दोगे, 39 के बदले में क्या कर दोगे 42, तो ये 42 किसकी जगह पे ले लेगा, टेम्प की जगह पे ले लेगा। और आप हर जगह हर प्रोग्राम में आपने उस 39 के बदले में उसका नाम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टेम्परेचर टेम्प। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूव ए कॉमा हैश टेम्प, तो मूव ए कॉमा हैश टेम्प अभी क्या करेगा एक्यूमुलेटर में, क्या ये मूव ए कॉमा हैश टेम्प लिख के एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली क्या लोड होने वाला है, क्या लोड होगा बताओ जल्दी से मुझे, क्या लोड होने वाला है, क्या लोड होने वाला है। ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मूव ए कॉमा हैश टेम्प, आपने टेम्प को ऑलरेडी इक्वेट कर दिया किससे, कौन सी वैल्यू से, 39 से। डेसिमल वैल्यू 39 से आपने टेम्प को इक्वेट कर चुके हो, यानी ये जो टेम्प है वो आपका किसके बराबर है, 39 के बराबर है। तो ये सेंटेंस जो लिखोगे ना मूव ए कॉमा हैश टेम्प, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली कौन सा नंबर जाने वाला है, कौन सा नंबर जाने वाला है, 39 जाने वाला है बराबर, टेम्प नहीं जाएगा, 39 जाएगा। टेम्प तो सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस को आपने पहले इक्वेट कर दिया किससे, 39 से। तो ये इक्वेट डायरेक्टिव का इसलिए यूज होता है कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ चेंजेस प्रोग्राम में हो तो उसको आप सिर्फ एक सेंटेंस के बदले से चेंज कर सकते हो। अब यही चीज हर जगह पे लिखी हुई होती, ये जो चीज है टेम्प आपके प्रोग्राम में बहुत जगह पे लिखी होती, तो आप जा जाके हर जगह पे जाके थोड़ी चेंज करोगे। अगर आपने पहले सेंटेंस में उसको इक्वेट करके रखे हो, ये टेम्प इज इक्वल टू क्या है 39, तो अगर फॉर एग्जांपल 39 के बदले में आपको 42 करना है, तो सिर्फ एक ऊपर के सेंटेंस में आपने इक्वेट में आगे 39 के बदले में 42 लिख दिए, तो जहां जहां पे भी टेम्प लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू ले लेगा, 42 ले लेगा। तो मल्टीपल नंबर ऑफ चेंजेस को दूर करने के लिए इक्वेट डायरेक्टिव यूज होता है। मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल प्लेस में जहां पे चेंजेस करना पड़े उसको एक सेंटेंस में चेंज करने के लिए ये इक्वेट डायरेक्टिव यूज होता है। तो इक्वेट से आप क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस को आप उस वैल्यू से जोड़ देते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, टेम्प किससे जुड़ा हुआ है, 39 से। तो ये सेंटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वैल्यू। तो आप सेंटेंस को इक्वेट करते हो उस वैल्यू से। आप हर प्रोग्राम में उस वैल्यू की जगह पे सेंटेंस को लिखो, और अगर आप चेंज करने की बारी आई तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में चेंज कर दो, हर जगह पे चेंज हो जाएगा, वो जगह जगह पे चेंज हो जाएगा। तो इज दैट क्लियर। इक्वेट डायरेक्टिव का इस्तेमाल क्यों होता है, फॉर गिविंग अ कांस्टेंट विद पर्टिकुलर नेम, यानी कोई कांस्टेंट को आप अगर नाम देना चाहते हो तो उस नाम देने के लिए कौन सी डायरेक्टिव का यूज करो, इक्वेट डायरेक्टिव का यूज करो। अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 1, नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट एमसीक्यू सेट 1। तो एमसीक्यू सेट 1 ये है, फॉलोइंग असेंबलर डायरेक्टिव डिफाइन द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर द प्रोग्राम इन प्रोग्राम मेमोरी। कौन सा डायरेक्टिव है जो डिफाइन करता है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ORG? Yes, very good. Second, following assembler directive used to define a constant without occupying a memory location. तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है जो मेमोरी में जगह भी नहीं लेता है, कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए? अभी बता रहा था ना मैंने, EQU। अब EQU का यूज कर लो, कांस्टेंट को डिफाइन कर दो कोई भी नाम से, तो EQU स्टेट यूज होता है। थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा 1 DB 28, डेटा 2 DB बाइनरी में, डेटा 3 DB 39H। आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव्स इन द अबव। तो ये कौन सी डायरेक्टिव है बता दो जरा फटाफट। डेटा बिट है, डिफाइन बाइट है, डेटा बाइट है, डिफाइन बिट है, क्या है ये? DB कौन सा है, कौन सा डायरेक्टिव है?
DB stand for which directives? Data bit, defined Data by bit. Data byte. data byte. कौन सा? Define byte. हाँ, Define डिफाइन बाइट, यानी बाइट को डिफाइन कर रहा है। बाइट जो है वो कौन से नंबर सिस्टम का है, उसको डिफाइन करने वाला डायरेक्टिव। Define byte. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको मिल गया, डिफाइन बाइट डायरेक्टिव है। तो पहले वाले का आंसर ए, दूसरे वाले आंसर का सी, ई क्यू यू, थर्ड वाले का आंसर डिफाइन बाइट। तो डीबी स्टैंड फॉर डिफाइंड बाइट। फिर इसके बाद में एंड डायरेक्टिव है। एंड का तो आपको पता ही है, जहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या सेंटेंस लिखते हैं, कौन सी डायरेक्टिव यूज करते हैं? एंड डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है ना, लास्ट में आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है तो एंड डायरेक्टिव्स लिखते हैं ना। तो ये भी ऑल्सो डायरेक्टिव्स है जो आपको डायरेक्शन देता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्शन देता है कि प्रोग्राम इज एंडेड, तो दिस इज एंड डायरेक्टिव। फिर इसके बाद है कोड डायरेक्टिव। कोड डायरेक्टिव का क्या इस्तेमाल होता है? कोड डायरेक्टिव्स का यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल, कोड, एड्रेस। तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी लोकेशन को कोई नाम से लेबलिंग देना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो आप रिप्लेस कर 0 मेमोरी लोकेशन है, वो कौन से नाम से रिप्लेस हो जाएगा? रीसेट के नाम से रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा भी है कोड 1024। तो 1024 जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन से नाम से जोड़ दिया जाएगा, कौन से नाम से दे दिया जाएगा? टेबल के नाम से। तो ये सब अलग अलग डायरेक्टिव्स है। तो ये डायरेक्टिव, कोड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो आप? अपने मेमोरी लोकेशन को कोई लेबलिंग से आप जोड़ सकते हो, कोई नाम से दे सकते हो। तो मेमोरी लोकेशन 1024H कॉल टेबल। तो ये मेमोरी लोकेशन 1024 क्या बन जाएगा? कौन से नाम से जुड़ जाएगा? टेबल के नाम से जुड़ जाएगा। मेमोरी लोकेशन 00H कौन से नाम से जुड़ जाएगा? रीसेट के नाम से जुड़ जाएगा। तो ये कोड डायरेक्टिव का यूज करके आप मेमोरी लोकेशन को कोई नाम से जोड़ सकते हो। लास्ट है आपका डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब फॉर एग्जांपल अगर जिस तरीके से आप मशीन अपना मेमोरी लोकेशन को आप नाम दे रहे थे, उसी तरीके से आप कोई डेटा को भी नाम दे सकते हो। इसका सिंटैक्स जो यूज होगा वैसे यूज होगा, लेबल, कोलन, स्पेस, डेटा, स्पेस, एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी लोकेशन है 32, इंटरनल मेमोरी लोकेशन 32, तो उस इंटरनल मेमोरी लोकेशन को कोई नाम से आपको जोड़ना है, तो 32 को आपने नाम से दे दिया, टेम्प नाम से दे दिया। तो रजिस्टर एड एड्रेस 32 इज नेम एज टेम्परेचर 12। इसी तरीके से अगर आपने कोई PSW रजिस्टर है, उसका एड्रेस यूज किया आपने D0H, तो D0H को आपने नाम दे दिया स्टेटस। तो ये सब अलग अलग डायरेक्टिव यूज होती है। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी लोकेशन, ये रजिस्टर वगैरह जो है उसको अगर कोई नाम देना है तो आप 32 जो रजिस्टर है उसको आप नाम दे रहे हो टेम्प। और अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फ्लैग रजिस्टर है तो उसको आप नाम दे रहे हो स्टेटस R करके। तो यहाँ पे डेटा डायरेक्टिव का यूज होता है। तो इंटरनल रैम एड्रेस को अगर नाम देना है तो इंटरनल रैम एड्रेस को नाम देने के लिए डेटा डायरेक्टिव यूज होता है। और अगर प्रोग्राम मेमोरी कोड मेमोरी को अगर नाम देना है तो कोड डायरेक्टिव यूज होता है। तो दोनों में फर्क समझ लो, एक डेटा है जो इंटरनल रैम एड्रेस को नाम देने के लिए यूज होता है, और एक कोड है जो कोड यूज होता है किसके लिए? प्रोग्राम मेमोरी को नाम देने के लिए। नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट MCQ सेट 2। सेट 2 के लिए आते हैं हम लोग इधर पे। तो ये आपका फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इंडिकेट टू द असेंबलर टू द एंड ऑफ द सोर्स फाइल। कौन सा है भाई डायरेक्टिव जो एंड वाला बताता है? एंड ऑफ द सोर्स फाइल, एंड डायरेक्टिव्स कौन से? ऑप्शन डी। सेकंड, फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू असाइन अ सिंबल टू एन एड्रेस विद इन एन इंटरनल रैम। तो कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है सिंबल असाइन करने के लिए एड्रेस जो इंटरनल रैम का होता है? इंटरनल रैम एड्रेस को कोई सिंबल असाइन करने वाला डायरेक्टिव कौन सा है? इंटरनल रैम एड्रेस को कोई सिंबल असाइन करने वाला डायरेक्टिव कौन सा है? कोड है, ORG है, DB है या डेटा है? कौन सा है? डेटा। डेटा लास्ट वाला जो डायरेक्टिव था वो इंटरनल रैम एड्रेस को सिंबल असाइन करने के लिए यूज होता है, डेटा। आइडेंटिफाई डायरेक्टिव यूज टू असाइन अ सिंबल टू प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस। तो प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस को असाइन करने वाला कौन सा है डायरेक्टिव्स? प्रोग्राम मेमोरी को कोड है। वेरी गुड, कोड। तो बहुत आसान था ये, इसलिए हम लोग ने कर लिए। पहले वाले का आंसर डी, सेकेंड वाले का आंसर डी डेटा, और थर्ड वाले का आंसर एक कोड। ठीक है, तो ये सब फर्क जरा अंडरस्टैंड करके रखो कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। तो ये लेक्चर में हम लोग ने असेंबली और डायरेक्टिव्स को भी अंडरस्टैंड किए, कौन कौन सी डायरेक्टिव्स होती है,
ORG, DB stand for defined byte, EQ stand for equate, and code and data memory. So all these directive also we have completed. So in our today's lecture, we have completed the two topics, software development cycle and as well as assembler directives. So दोनों भी topic बहुत important थे, second chapter से related थे, and with this we have ended our second chapter also. अब इसके बाद हम लोग next chapter start करेंगे in our next lecture. So that's all for today's lecture. Thank you all of you for joining.